Good morning, students of class 9, and welcome back again to my video session. I hope you all are fine. Today, I have come up with a new video session to discuss the part 2 of our second chapter of CBSE textbook Beehive, and the name of part 2 is the Sehnai of Bismillah Khan. In this chapter, students, we are going to study about the Sehnai of the Bismillah Khan. Okay, as you know already, we have covered the first chapter, that is the fun they had, and then the poem The Road Not Taken, and then first part of the Sound of Music, in which we studied about Evelyn Glennie. I also made a special question answer discussion session for you guys so that you will be able to write down the question answers thoroughly. You can watch all those videos on my YouTube channel. So let us start our today's session. In this session, we are going to discuss about the Sehnai of Bismillah Khan. You all must be known with Bismillah Khan. He was a famous maestro of Sehnai, and in fact it was he who brought Sehnai up to the global platform. Okay. Earlier Sehnai was not so peculiar, not so famous. It was Ustad Bismillah Khan who invented many new ragas and played it in or abroad the country and made it renowned. Okay. So the extract that in your chapter is given, starts from the era of Aurangzeb. We all know who is Aurangzeb. He was one of the prominent Mughal emperor who died in 1707. When he was in the reign of India, and when he was emperor of Mughal Empire, he banned playing of pungi. Pungi was a musical instrument which was made up of a bamboo type structure, bamboo piece, which was narrow at both the end and bludged in the middle. Okay? Pungi was narrow at both the end and bludged in the middle. Okay, like this. You can see in the picture, this is pungi. It is narrow at both of the ends and then bludged in the middle. Bludged. Okay? Swallow. So, Aurangzeb banned that musical instrument because it produced rough sound, unpleasant sound. Nobody liked its sound. Emperor Aurangzeb did not like its sound. Okay. And any of that reeded instrument means made of long bamboo or stick, long and thick bamboo stick. Reeded instrument. Reed means a long narrow streak of grass, है ना? तो reeded instrument मतलब पतली बांस की बनी हुई कोई भी instrument. So any reeded instrument who made unpleasant sound, people named it pungi in general. मतलब एक आम सा शब्द बन गया पुंगी. जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब आवाज करता था, अच्छा संगीत नहीं देता था, धुन नहीं देता था, तो
उसको पुंगी बोल देते हैं कि पुंगी बजा रहे हो. ओके, बट some of you, some of the people of that time had hope that it will revive once again, कि एक बार फिर से प्रचलन में आएगा. Revive means to come into existence, to come into prevailing once again, कि एक बार फिर प्रचलन में आएगा, ऐसा लोगों को उम्मीद था. ओके, सो स्टोरी गोज ऑन, कहानी आगे बढ़ती है. And a barber of a family of professional musician who had access to royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. एक बार्बर जिसका ताल्लुक म्यूजिशियन फैमिली से था, इस वजह से उनका आना जाना राज दरबार में हुआ करता था. He decided to invent something to improve the tonal quality, sound quality, the music of pungi. Okay, so he converted pungi into a broad pipe which was narrow at one end and its narrowness was increasing at the other end. Okay, he chose a hollow pipe which was narrow at one end and wide at the other end. Okay, and then he made 7 holes on the body, and then he played the instrument by putting the fingers one by one on the holes of that newly made instrument, and the result was amazing. The instrument produced beautiful sound. Okay, like this one. See the Sehnai. And the story goes that, a saying goes, कहावत ऐसी है, लोग कहते हैं, people say that Sehnai was named on that barber because that barber was a nai of Shah. Shah मतलब king, राजा, और नाई मतलब बार्बर. ठीक है, वो राजा का बार्बर था, मुगल एम्पायर का बार्बर था, इस वजह से, और उसने उसको इंस्ट्रूमेंट बनाया था, तो शाह का नाई सहनाई. ओके, वहां से सहनाई को अपना नाम मिला. सो इट प्रोड्यूस गुड साउंड एंड सुन पीपल स्टार्टेड टू गेट अफेक्टेड, गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड इम्प्रेस्ड ऑफ इट्स साउंड. ओके, सो इट बिकेम एन ऑस्पिशियस वन. बहुत जल्दी उसको शुभ माने जाने लगा. ओके, एंड ड्यू टू विच इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड indispensable part of ceremonial functions. Okay, indispensable parts of marriages. आज भी मंदिर में शहनाई वादन किया जाता है, शादियों में बजाया जाता है शहनाई. बट पहले it was only limited to the king's courts, royal courts. Okay, and it had become one of the 9 assemble that sit into royal courts to perform. उन 9 लोगों के टीम में जो वाद्य यंत्र के लिए, संगीत कला के लिए राज दरबार में जाया करते थे, उनमें से सहनाई भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया. ओके, लेटर ऑन बिस्मिल्लाह खां. ओके, he was born on 21st March 1960. ओके, इन बनारस से थे बिस्मिल्लाह खान. 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ. 5 साल के जब ये थे तो बिहार की गलियों में, बिहार में कहाँ से, फ्रॉम वेयर इन बिहार, डुमराव, इन द स्ट्रीट ऑफ डुमराव, डुमराव से थे. इन द स्ट्रीट ऑफ डुमराव he played gulli danda near the pond, and along with it, उसके साथ साथ he would regularly go to बिहारी जी's temple. बिहारी जी का मंदिर था डुमराव में, लॉर्ड कृष्णा's टेम्पल, भगवान श्री कृष्ण का टेम्पल पास में ही, where people would sing chaita
and he would also go to sing Bhojpuri Chaita. Chaita is a folk song of Bhojpuri, traditional songs हैं, okay? भोजपुरी में चैता गाया जाता है, निर्गुण गाया जाता है, so it is a type of folk song, traditional song. तो बिस्मिल्लाह भी उस मंदिर में बिहारी जी के टेम्पल में चैता गाना जाया करते थे और अंत में उन्हें 1.25 किलो का लड्डू इनाम में मिलता था वहां के महाराजा द्वारा, डुमरांव के. 80 वर्ष पहले की, अभी से तो बहुत वर्ष, अभी से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है. 100 वर्ष 1916 में 100 से ज्यादा वर्ष हो गए, तब की कहानी है ये. सो वहीं से बिस्मिल्लाह का म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट था. फ्रॉम देयर ही टुक इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड ही हैड अ फैमिली बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक. उनका फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूजिक का था, बिकॉज हिज फैमिली मेंबर्स बिलोंग टू वेल नोन म्यूजिशियन ऑफ बिहार. बहुत जाने माने म्यूजिशियन में थे. उनके पिता नहीं, दादाजी, हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, सहनाई नवाज एट भोजपुर किंग्स कोर्ट. भोजपुर के राज दरबार में सहनाई नवाज थे, सहनाई के चीफ प्लेयर थे. हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वेर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स. एवरीबडी हैज प्लेड सहनाई. इसलिए सहनाई से, म्यूजिक से इनका बहुत ही अच्छा लगाव था. ओके, तो ड्यू टू बीइंग ऑफ म्यूजिकल फैमिली ही टुक म्यूजिक अर्ली इनटू हिज लाइफ. बहुत ही कम उम्र में म्यूजिक के बहुत ही गूढ़ रहस्यों के ये जान गए. उन्होंने अपने जीवन में उसे पूरी तरीके से डाल लिया, उतार लिया. एंड एट द एज ऑफ 3 ही वुड रेगुलरली गो विथ हिज अंकल, मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस. ओके, बिकॉज ही देयर played Sehnai and he would just go to listen him, to see him and to practice, to read the notes. रियाज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, कैसे इनके मामा जी बजाते हैं सहनाई, उसको देखने के लिए 3 वर्ष की उम्र से ही उनके साथ जाया करते थे. एंड देन ही ऑल्सो स्टार्टेड विजिटिंग टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस विद हिज अंकल अली बख्श. उनके जो अंकल थे अली बख्श, उनके साथ में जो वहाँ बनारस में विष्णु जी का टेम्पल था, वहाँ पे सहनाई प्ले करने के लिए जाते थे अंकल. उनके साथ में ये भी जाने लगे. ओके, एंड देन स्लोली ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद सहनाई सिटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा. डुमरांव में, बनारस में गंगा की पवित्र निर्मल धारा बहती थी. और उस शांति में, जब आप किसी अपने कला को निखारना चाहते हैं तो आपको शांति चाहिए, आपको प्रकृति चाहिए. तो उस गंगा के किनारे, लहरों के किनारे शांति में अकेले बैठ के कई घंटे, so many hours he did practice and he would there invent his own ragas. By the waves of Ganga river, to see, after seeing the waves of Ganga river, he always went inspired to develop न्यू रागाज. जिस प्रकार से गंगा नदी में हर बार एक नई प्रकार की लहरें आती थी, इनको भी उससे प्रेरणा मिलती थी कि मैं नए नए राग निकालूं सहनाई में. ओके, और इसके लिए वो वहां प्रैक्टिस करते रहते थे. ओके, अकेले में. एंड एट एज ऑफ 14 he accompanied his uncle to visit Allahabad एट अ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. अलाहाबाद में म्यूजिक सम्मेलन होने वाला था, संगीत सम्मेलन. 14 वर्ष की उम्र में उन्हें बिस्मिल्लाह खान को अपने अंकल के साथ जाने का मौका मिला और वहाँ उन्होंने अपना एक प्रस्तुति दिया. एंड देयर उस्ताद फैज़ खान प्रेज्ड हिम अ लॉट, बहुत उनकी प्रशंसा की. एंड टोल्ड हिम दैट यू विल मेक योर लाइफ वन डे. आप अपने जीवन में एक दिन अच्छा नाम कमाएंगे. ओके, एंड ही गेट हिज
first break with the opening of All India Radio in Lucknow in 1938, where he became a Sahnai player on air Sahnai player. जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में 1938 में, तो वहाँ उनको अपने ज़िंदगी का पहला करियर स्टार्टिंग पॉइंट मिला, और वहाँ दूरदर्शन पे आने वाले, दूरसंचार यंत्र पे आने वाले शहनाई वादक बन गए. एंड फ्रॉम देन द होल इंडिया स्टार्टिंग हियरिंग नाउ ऑफन, वेरी ऑफन. अक्सर इनको पूरी दुनिया, पूरा भारत सुनता था. एंड after that he kept achieving lot. Lots of awards were being conferred. He was being invited in many of the important ceremonies. बहुत सारे पुरस्कार मिलने लगे, बहुत सारे important functions में उनको नेता देने जाने लगा, बुलाया जाने लगा. And to play Sahnai in front of Nehru and Gandhi, in front of Nehru ji and Gandhi ji, was one of such invitation, was one of such major important ceremony for उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने थे अपने भारत को सहनाई वादन से स्वागत करने वाले और बधाई देने वाले. एंड दिस डे वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज भारत के प्रोमिनेंट लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी and many more were there, and even Pandit Jawaharlal Nehru gave his famous speech of Christ with Destiny. After that, once he was also called by Prince of Afghanistan, जो उनका पहला फॉरेन ट्रिप था, King of Afghanistan, King Zahir Shah of that time. King Zahir Shah of that time invited Bismillah Khan to his country, and that became his first trip to abroad. There he performed, and the king was so impressed of his Sahnai skills, instrumental skills, that he gave priceless Persian carpets and other souvenirs. मतलब कि अमूल्य पर्शियन रेशमी कारपेट, जो वहाँ बहुत महंगा होता है, उधर का कारीगरी किया हुआ, और सारे कई निशानियाँ, सोवेनियर्स. ओके. एंड देन द बॉलीवुड वर्ल्ड वाज आल्सो फैसिनेटेड ऑफ हिज स्किल. ओके. So that after hearing him and hearing his achievements, they decided to make a film upon him. And Vijay Bhatt, director of that time, made a film named Goonj Uthi Sahnai, which was a hit one, and in which Bismillah Khan has composed a song Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, which turned to be a nationwide chart बस्टर, ब्लॉकबस्टर. इनकी इन अचीवमेंट से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा. वहाँ के फेमस डायरेक्टर उस समय के विजय भट्ट, उन्होंने इनके ऊपर एक मूवी बनाई गूंज उठी सहनाई, बहुत हिट किया. और उसमें एक स्पेशली एक कंपोजिशन था जो बिस्मिल्लाह खान साहब ने खुद से बनाया था, दिल का खिलौना है टूट गया. जिस समय ऐसे कभी कैसे ट्रेंडिंग होते हैं सारे सॉन्ग, नंबर 1 ट्रेंडिंग, नंबर 2 ट्रेंडिंग, उस समय का वो चार्ट बस्टर, ब्लॉकबस्टर रह चुका था सॉन्ग. इनकी इतनी सक्सेस के बाद भी बॉलीवुड में इनको सिनेमा जगत का भी रास नहीं आया. ही नेवर लाइक द सेलुलॉइड वर्ड. ही नेवर लाइक्ड, लव्ड द सोविंग्स, साइंस, और मतलब उसकी तड़क भड़क चमक इनको पसंद नहीं आया. एंड सिर्फ इन्होंने उसके बाद उसमें वेंचर करना मना कर दिया. एक और वेंचर किया जो उन्होंने, विक्रम श्रीनिवास ने कन्नड़ में गूंज उठी सहनाई का वर्जन लॉन्च किया.
सिर्फ वहीं तक काम करके बॉलीवुड में ये रह गए। उसके बाद से कई सारे अवार्ड्स इनके पास आए। ही बिकेम फर्स्ट इंडियन टू इन्वाइटेड एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन अमेरिका टू परफॉर्म। पहले इंडियन बने जिनको प्रेस्टिजियस लिंकन अमेरिकन हॉल में बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ म्यूजिक इन मॉन्ट्रियल में भी परफॉर्म किया, केन्स आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, मीन्स जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स थे म्यूजिक के, सब जगह इनको न्योता दिया गया, इनवाइट किया गया, ये गए, परफॉर्म किया, पार्ट किया इन्होंने। एंड इनके नाम पे इंटरनेशनली ये इतने फेमस हो गए, ही बिकेम फेमस इंटरनेशनली, सो फेमस दैट अपॉन हिज नेम एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज मेड। तेहरान में इनके नाम पे एक ऑडिटोरियम बना दिया गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ऑडिटोरियम का नाम है तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 2001 in 2001 he was awarded with highest civilian award, that is भारत रत्न, जिसकी इन्हें बेसब्री से प्रतीक्षा थी और उन्हें मिल गया। और खुशी में ये ज़्यादा बोल नहीं पाए। इन्होंने संदेश दिया कि बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाए, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, बिकॉज म्यूज़िक इज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तान। भारत की एक अच्छा ट्रेडिशन है, संस्कृति है संगीत। एंड इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चांसेस, in spite of so many awards, so many renowned programs, he just died for India. इतने सारे विदेशी मौके होने के बाद, इतने सारे प्रोग्राम में व्यस्त रहने के बाद, ये सब करने के बाद, नाम होने के बाद, तड़क भड़क होने के बाद भी इन्हें सिर्फ भारत से प्यार था। इसके बारे में दो बातें कही जाती हैं, टू थिंग्स आर देयर, that whenever he was abroad, he always thought of India, and whenever he was in Mumbai, he always thought of Banaras, and whenever he was in Banaras, he always thought of Dumrao and that holy Ganga river. जब कभी विदेश होते थे तो उन्हें हमेशा इंडिया की याद आती थी, और जब कभी मुंबई होते थे तो हमेशा डुमराव, बनारस, गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी की याद आती थी। In fact, a student of his at US asked him, requested him to set up a new institution in US. Okay, in the condition that he would make the environment as per Ustad Bismillah Khan, on the condition. इनका एक शिष्य था जिसने कहा कि सर आप यहीं पर अपना इंस्टीट्यूशन एक बड़ा सा खोल लीजिए, मैं खुलवा देता हूँ, सारी व्यवस्था करवा देता हूँ, आपको आपके मन के तरीके का इन्वायरमेंट भी मैं आसपास बनवा दूंगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा, वुड यू एबल टू ब्रिंग रिवर गंगा, क्या आप पवित्र गंगा नदी को ला पाएंगे? और उन्होंने मना कर दिया, ही डिनाइड। एक बार की और बात है, ही हैपेंड टू विन पाकिस्तान गए थे, बट वहाँ पाकिस्तान को उन्होंने अलविदा कह दिया आधे ही घंटे में, और हिंदुस्तान को उन्होंने नमस्कार कर दिया। मीन्स ही वॉज होल हार्टेडली इंडियन, ही लव्ड इंडिया, ओके, इंडियन पीपल, इंडियन कल्चर्स, ही लव्ड म्यूजिक, एंड ही वॉज टोटली डिवोटेड टुवर्ड सहनाई, प्लेइंग टुवर्ड म्यूजिक। और बहुत सारी नए रागाज इन्होंने इन्वेंट किए, और इनके कारण आज सहनाई की इतनी डिमांड है। सहनाई इज रिनोन्ड इंस्ट्रूमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके, एंड ही हैज़ ऑल्सो मेड इंडिया प्रेस्टिजियस, भारत को भी उन्होंने बहुत प्रेस्टिजियस बनाया। सो गाइज, दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट 2 ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस चैप्टर twice with the help of dictionary in your hand, and then point out that important points, and then point out also those points that you were not able to understand, and comment me in the comment section. I'll try to come up again to clear with you those points.
Till then, in your home assignment, read this letter twice, write down the word meanings, make sentence with difficult words, as well as try to complete the question answers of this chapter. Goodbye.